to what's been happening in Uttar Pradesh. Remember, we are just less than 3 weeks to go before you'll have the grand Mahakumbh Mela at Uttar Pradesh's Prayagraj. And then there seems to be absolutely no end to this political war of words over the preparations for the event, intensifying the attack on the Yogi-led UP government. The SP chief, Akhilesh Yadav, he's been targeting the arrangements right from security measures to electricity poles to even bridges. Now, the SP chief here has been posting videos on the microblogging site that is X, which he calls a special news bulletin to expose BJP's misgovernance. So what happened is that yesterday he posted videos of several electricity poles from Prayagraj. He's mocked the government, saying that it is only under the BJP government that you have electricity poles that do not have wires. Today, he posts another video of bridges on his social media account, and today he's leveling allegations that only 9 out of the 22 bridges for the event are even ready. He's also said that it's concerning on how the government would be able to complete the preparations when only 40% of the total work is completed with less than 20 days left. And Akhilesh's consecutive attack on the BJP government has triggered this huge political showdown as expected. The Congress is rallying behind the SP, saying that if anything untoward happens, it is the Yogi government that is going to be utterly responsible. Millions of people, Shraddhalus, are coming from various parts of the world, not only from India. And it is the responsibility of BJP government to look after them, to make all the arrangements. Nothing wrong should happen there in Kumbh Mela. If anything happens wrong, then I am sorry to say BJP and its government will be responsible. Mahakumbh is the astha of people of the country, and we all believe in our Mahakumbh, the purpose of Mahakumbh. The way they are trying to politicize it and also to divide the people among the religion and other things, I think that is not good. It should be used for the harmony of the country. Now, the BJP has slammed the SP chief, accusing him of politicizing a religious event and even reminding him that when the SP was in power, there was a big stampede that occurred during the Mahakumbh Mela. अखिलेश यादव जी, आप तो विदेश में पढ़े लिखे हैं, आपको तो पता ही होगा कि पहले खंबे ही लगते हैं और खंबे लगने के बाद ही उसके ऊपर तार लगता है। परंतु पता नहीं, विरोध के लिए विरोध करना है तो कोई भी बेतुकी बातें करनी है। कम से कम महाकुंभ के आयोजन को तो छोड़ देते और याद करते आपके वो दिन 2013 के, जब महाकुंभ के आयोजन का पूरा भार आजम खान को दिया गया था। कैसे भगदड़ मची थी, कैसे लोगों की जाने गई थी। आज जब पूरी दुनिया में महाकुंभ की वाहवाही होती है, खामखा की कटाक्ष करके उसे पूरी दुनिया में हंसी का पात्र कैसे बनाया जा सकता है, इसके प्रयास में लगे हुए हैं। Let's also get in our colleague Manish, who's tracking all developments. हमारे साथ लाइव है इस समय। मनीष, देखिए, इसमें अखिलेश यादव जरूर ये चाहेंगे कि लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमला किया जाए, लेकिन भाजपा कहती है कि क्योंकि ये सनातन विरोध इतना गहरा है कि आप राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, उसके बाद महाकुंभ पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अपने बारे में खामोश रहते हैं, तो अखिलेश यादव इससे कैसे डील करेंगे? देखिए, चूंकि महाकुंभ की तैयारियों में अभी समय है। 13 से पहला स्नान होना है, 13 जनवरी को पहला स्नान होगा, 14 जनवरी से एक तरीके से जब मकर संक्रांति होती है तब से इसका शुभारंभ माना जाता है। तो ऐसे में सरकार ही मानकर चल रही है कि उससे पहले सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां चाक चौबंद कर ली जाएंगी। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान भी महाकुंभ का आयोजन किया है, हालांकि उसकी चर्चा विदेश तक हुई थी, लेकिन एक घटना ने उस पूरे महाकुंभ पर सवाल खड़े कर दिए थे। रेलवे स्टेशन पर जो अफरा तफरी मची थी, उसमें कई लोगों की जाने गई थी। आजम खां उस वक्त नगर विकास मंत्री थे। ट्रैफिक का मैनेजमेंट इस लिहाज से ठीक नहीं था, जिसके चलते ये दुर्घटना सामने आई। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाए तो अपने गिरेबान में झांके। ऐसा ही बीजेपी के नेता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के चीफ को पहले अपने सरकार के दौरान हुई अव्यवस्थाओं पर देखना होगा, उसके बाद बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। क्योंकि अभी कुंभ की शुरुआत नहीं हुई है और अभी इनिशियल स्टेज है, तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां धीरे धीरे मुकम्मल होती जा रही हैं, चाहे वो सुरक्षा के इंतजाम हो या फिर लोग जो वहां पर बड़ी संख्या में स्नान करने पहुंचेंगे उनके लिए बाकी सुविधाओं के विकास की तैयारी हो।
या सुरक्षा का अहम जिम्मा हो। इन सारे पहलुओं पर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज के दौरे कर रहे हैं। कल जो पुलिस विभाग के एडीजी हैं, उन्होंने भी प्रयागराज जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, अगर कोई चीज किसी चीज में लापरवाही बरती जा रही है, कोई चूक हो रही है, तो उसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, इसके निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ जोर शोर से महाकुंभ के आयोजन पर राज्य सरकार चल निकली है। बाहर की चीफ मिनिस्टर को न्योता दिया जा रहा है, गवर्नर भी बुलाए जाएंगे, सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। तो कैसे महाकुंभ को एक तो बड़े सनातनी पर्व के रूप में देश विदेश में मनाया जा सके, और दूसरा उससे अर्थव्यवस्था को कैसे गति दी जा सके, इन दो पहलुओं पर राज्य सरकार काम कर रही है। जी मनीष, फिलहाल thank you for getting us all that update. We'll continue to track that big political war between the SP, the Congress, and the BJP in Uttar Pradesh. For the moment, let's get you a quick roundup of